Okay, can you see my screen? No, it's loading. Yeah, I can see. Okay, you can see the screen. Okay, just fine. Okay, so just what we have got this. Okay, so this is the screen. Oh, okay, can you see this now? Yes. Okay, so these are basically I'm just willing to like briefly describe you the parts of his speech, and if I think the detail is needed, so I'll add up, right? So there are 8 parts of his speech in our normal conversation, in our speech. यानी कि 8 हिस्से होते हैं। मैंने आपको अपने डेमो क्लास में बताया था कि इट्स लाइक 8 बॉक्सेस। अगर हम अपनी स्पीच को 8 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम 8 बॉक्सेस ले लेते हैं और अपने हर लफ्ज को किसी एक न एक कैटेगरी में डालते हैं। तो वो जो 8 कैटेगरीज बनती है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन और लास्टली इंटरजेक्शन है। ठीक है, हम सबको सुपरफिशियली पढ़ने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग विद नाउन। नाउन देखने में तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बट इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, राइट? Generally, when we are in our young classes, what is taught to us about noun? The nouns are the name of the person, people, place, and things, or animals. Isn't it like that, Amara? Yes. Okay, but that's not the reality. There's so much more in like everything in the world which you can name is basically a noun. That's the proper definition. Whether it's an idea, it's a concept, it's a feeling, it's an emotion, it's a place, it's an animal, plant, people, whatever that is. Okay, so everything is included in noun. Now, if I talk about the basic definition, here are some examples on your screen. For a person, maybe the president, Amara, Shabana, Ali, whatever you see, people. Then place means any place in this world. That could be a town, that could be a village, a city, and you see a country or continent, and blah, blah. Okay. Then we have got things, the things around us, which are basically non-living thing. And then we have got idea or concept. For example, here they have written the example of minimalism. Do you know what's minimalism? No. Okay, minimalism is basically it's a new concept emerging right now. But you see, this concept is in our religion. You see, 1400 years back, this concept says to live with less, okay, with less amount of stuff. Like nowadays, people, we are just stuffed with the stuff all the way. We have got a lot of stuff, and it is like calculated. An average person can have 3,000 to 5,000 kind of different objects in their homes, especially the Americans. Okay, they are hoarders. Okay, so it may be naming something we can touch, tangible. ऐसी चीजें जिनको हम touch करते हैं. हमारा please note down all these terms so that it can help you up, right? So nouns are those things which are tangible. Tangible का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम touch कर सकते हैं, ठीक है? और something which we can't touch क्या होगा? वो intangible हो जाएगा, opposite हो जाएगा. Tangible, intangible, right? For example, the best example is that we both are taking online classes, and the knowledge which we are imparting to one another is what is intangible. उसको हम touch नहीं कर सकते, but you can touch that laptop on which you are taking the classes. Okay? Yes, this is tangible. Yeah, if for example AC कमरे में लगा हुआ है, तो I can touch the AC, but I can't touch the coolness of AC. Okay. So there are a lot more things which are basically, which we'll study in detail in now. So that's the basic definition. Like all these things which are tangible or untangible, visible or invisible, they all are noun if you can name it. Okay, they are both nouns used for classes of people, places, things, ideas, concepts. Okay, now we have got as I always say, Amara, there are, for example, आपके घर में एक shelf है, ठीक है, it's a bookshelf, and you have to arrange that bookshelf according to your will. So how many different ways you can arrange that shelf, Amara? The first part of crockeries, and the second part was I'm talking I'm talking about bookshelf. आपके पास बहुत सारी books है. For example, you have got 200 books. Now you have to arrange them in a shelf, and that shelf will go, for example, 6 or 7 box like rows for setting those books in, right? So किस तरह आप classify करेंगे जो आपको लगेगा कि सबसे easy है आपके लिए? According to subjects, I label them.
with subjects and one portion with for Quran, Pak, and all the Absolutely paras. good. Absolutely good. Beautiful answer. And what about any other approach? If I ask you for 4 or 5 different approach, so can you answer me, Amara, for that? Okay. This is the one which you said according to subject, right? What about the second one? Okay. Second one, like cupboard. I have a cupboard, so how I read It's a that? bookshelf. It's a bookshelf. It's a bookshelf. Like it is got It's a different bookshelf. partitions. The bookshelves normally have partitions, right? So So what are you asking? I'll give an example. you see, I am asking in how many different ways can you classify your books to put them in shelf? For example, one way you said according to the subject. You can also keep the books according to the height. जितनी लंबी बुक है वो आप एक शेल्फ में रख दें, छोटी किताबें दरमियाने साइज की एक जगह, उससे छोटी एक जगह. You can also keep the books according to the author और जेनरा का मतलब होता है किस्में. मतलब नॉवेल्स एक जगह रख दे, रीडिंग बुक्स एक जगह रख दे, बच्चों की राइटिंग बुक्स एक जगह रख दे. ठीक है. फिर आप थिकनेस के हिसाब से कर सकती हैं कि मोटी किताबें ऊपर रख दें, छोटी पतली किताबें नीचे रख दें. फिर आप हाइट के हिसाब से कर सकती है. फिर इसके अलावा और बहुत सारे तरीके जिनके हिसाब से आप उसको क्लासिफाई कर सकती है. इजंट इट? ठीक है. हर बंदे जेनरा का मतलब होता है किसमें. लाइक फॉर एग्जांपल म्यूजिक में डिफरेंट जेनरास हैं, राइटिंग स्टाइल में डिफरेंट जेनरास हैं, रोमांटिक अलग है, फ्रिक्शन अलग है, और यू सी. ठीक है. मूवीज में डिफरेंट जेनरा है, हॉरर मूवीज अलग है, रोमांटिक मूवीज अलग है, मॉरल वीडियो मूवीज अलग है. ठीक है. जस्ट लाइक दैट. Action movie. Yes, exactly. Okay. So why I was giving you the example of classification for the shelf, because now can also be classified in different ways. First of all, we are reading the first way. That is to divide noun into 5 different types. The first one is common noun, proper noun, material noun, collective noun, and abstract noun. Okay. How many types? Okay. Okay. 5. 5 different types, right? Okay. So they're here. I don't have those names, okay, but I just have like common names मेरे पास है. proper मैं आपको वैसे explain कर देती हूँ if I have to learn. Okay, so common noun में आपके पास वो चीज आती है which doesn't give you proper sense or explanation. यानी कि proper sense of explanation से मुराद क्या है? For example, man तो कोई भी आदमी हो सकता है, country कोई भी country हो सकती है, shop कोई भी shop हो सकती है. ठीक है. लेकिन अगर मैं जॉन बोलूं तो इसका मतलब है जॉन ही है. ठीक है. पर्टिकुलर हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा. यस. इसी तरह मुंबई. ओके. मुंबई क्या हो जाएगा? ये एक स्पेसिफिक जगह का नाम है. ठीक है. स्पेसिफिक सिटी. समझिए. इसी तरह हमारे पास एक चीज होती है, देन वी हैव गॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन. ठीक है. एक सेकंड में देखते हैं. ओके. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन. इसके अलावा 3 मजीद हमारे पास कैटेगरीज हैं. ओके. ठीक है. तो कल मटेरियल नाउन तो नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसा नाउन जो कि मटेरियल का वो मटेरियल से मुराद क्या है? जो चीज जिससे बनती है. फॉर एग्जांपल आप खीर खा रही हैं तो खीर किस चीज से बनती है? मिल्क से. ठीक है. Milk and rice. ठीक है. इसी तरह फॉर एग्जांपल आप जो है फर्नीचर पे बैठी हैं, फर्नीचर किस चीज से बनता है? Wood. ठीक है. And तो ये सब चीज क्या है? आप ज्वेलरी पहनी हुई है. सो व्हाट इज योर ज्वेलरी मेड अप ऑफ? व्हाट इज द नेकलेस मेड अप ऑफ? मे बी डायमंड, मे बी गोल्ड, मे बी सिल्वर. ठीक है. तो इसी तरह आपकी डाइनिंग टेबल है. इफ यू हैव आयरन डाइनिंग टेबल, सो इट इज मेड अप ऑफ आयरन. ओके. तो ये जो नाम होते हैं ये सब क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स होते हैं. राइट. फिर हमारे पास एक चीज आ जाती है, वो आ जाती है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं भाई? कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ जानती हैं? collection of all the nouns. वेरी गुड. कलेक्शन ऑफ ऑल द नाउन. यानी कि ऐसा नाउन जो कि बेसिकली कलेक्टिव चीज को शो कर रहा हो. ऐसा नाउन जो कि बीच में क्या कर रहा हो? कलेक्टिव चीज को शो कर रहा हो. ठीक है. वो क्या कहलाता है आपका? कलेक्टिव नाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल I'm giving you the detail. Like it is a word that refers to a group of people, animals or things. For example, bouquet का मतलब क्या होता है? फूलों का एक कलेक्शन ना. बहुत सारे फूल एक जगह होते हैं तो that makes a bouquet. सिमिलरली आपके पास और बहुत से वर्ड है जैसे फ्लॉक, झुंड, परिंदों का झुंड. ठीक है. तो उसमें क्या बहुत सारे परिंदे, लेकिन आप उसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज कर रहे हैं, और ये वर्ड जो है ये एज अ सिंगुलर ट्रीट होगा. रिमेंबर, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. अ का मतलब है एक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. सिमिलरली अ हर्ड ऑफ शीप, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ स्कूल ऑफ फिश,
a team of people, a crowd of people, a bunch of flowers, a bunch of grapes, cluster of stars. Okay, तो ये सब क्या है? ऑडियंस है, आर्मी है, देन वी गुड स्टाफ। ये सब वर्ड्स क्या चीज है? ये बेसिकली है तो सिंगुलर, लेकिन ये पूरी उसको शो कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं हुजूम, क्राउड, यस क्राउड बोल तो क्या क्राउड में एक बंदा होगा? No, there are a lot of people. ठीक है, इफ आई से स्टाफ ऑफ द स्कूल, तो क्या स्टाफ में एक ही टीचर होगा आपके पास? ठीक है, तो ये होते सिंगुलर वर्ड से, बट दे शो a large number of people. ठीक है, I hope the concept is clear. Yes. Okay, ठीक है, collective noun, जी बोलिए। I heard a new vocabulary, enormous. That means a lot of people, a huge crowd. No. Enormous का मतलब होता है बड़ा। अब enormous कोई भी चीज हो सकती है। For example, I saw an enormous giant in my dream. बहुत बड़ा। Enormous crowd का मतलब है बहुत बड़ा हुजूम। भाई हुजूम में 10 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं, और 100 लोग भी हो सकते हैं। तो enormous का मतलब है ये बिग के लिए इस्तेमाल होता है। ह्यूमंगस, enormous, कोलोसल, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बिग के लिए इस्तेमाल होते हैं उसके सिनोनियम से। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह ताला करेंगे व्हेन वी विल बी डूइंग द वोकैबुलरी सेक्शन, वी विल बी डूइंग ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आप आ जाइए। हमने कलेक्टिव नाउन कर लिया, मटेरियल नाउन, प्रॉपर कॉमन। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना है हमारा आपको? Abstract noun, no, material noun and collective nouns are clear. Okay, now so common और proper तो वैसे भी easy था। Okay, now I'm going towards the last one, that's abstract noun. Abstract noun क्या चीज है? An abstract noun is a type of a noun that refers to an intangible concept, idea, feeling or quantity, okay, and that represents a non-physical entity. Means physical presence नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरा AC मुझे ठंडक दे रहा है। The coolness of the AC is not visible, it's not tangible, but I can feel that कि सर्दी लग रही है, नंबर कम कर दो, बढ़ा दो। ओके, सो ये नॉन फिजिकल एंटिटी में आते हैं। अब इसकी एक्सक्यूज मी, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमोशंस, मसलन इमोशंस में आप मुझे कुछ एग्जांपल्स देंगी हमारा? कौन से इमोशंस हो सकते हैं? मसलन हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, लव, हेट, ये सब क्या है आपके पास? ये इमोशंस है, और ये सारे वर्ड्स क्या है? नाउन है। ठीक है, नॉन टेंजिबल नाउन से। ठीक है, इसी तरह कॉन्सेप्ट मतलब फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, जस्टिस का, पीस का, होप का, विक्ट्री का, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या आप विक्ट्री छू सकती हैं? No. कैन यू टच फ्रीडम? No. ठीक है, तो ये सारे क्या है? इनटेंजिबल नाउन्स है। इनका जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए क्योंकि लोगों को सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अच्छा जी ना, वो नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग है, और दैट्स नाउन। दैट्स नॉट नाउन। नाउन इज एवरीथिंग इन द ग्लोब, everything around the universe which you can name is a naming word, right? ओके, फिर आपके पास क्वालिटीज है, ब्यूटी है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, करेज है। फिर आपके पास बहुत सारी ऐसे फिनोमिनास हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यू कांट टच द ग्रेविटी बट यू फील कि वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, एंड यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द अर्थ, राइट? देन यू हैव गॉट एनर्जी। सब कहते हैं ओ माय गॉड, मेरा बच्चे जो है दे आर हाइपर एक्टिव, उनकी तो एनर्जी का लेवल ही माशाल्लाह बहुत ही हाई है। तो कैन यू टच दैट लेवल? नो यू कांट, बट यू कैन फील दैट दे आर हाइपर एक्टिव, राइट? सिमिलरली स्पेस, टाइम, ये सब टाइम को आप वक्त को छू नहीं सकते, बट यू कैन फील इट्स, आई एम गेटिंग लेट, आई एम अर्ली टुडे। ओके, सो ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी मैं एग्जांपल्स की भी ऐड करूंगी। मटेरियल में हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कि मटेरियल में मैनमेड और नेचुरल दोनों मटेरियल शामिल है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वुड की एग्जांपल दी, लकड़ी, देन वी हैव स्टोन, मार्बल, वाटर, ये सब क्या है? सैंड, मेटल, जो पीरियोडिक टेबल में जो आपके मैनमेड मेटल्स है, वो गॉड मेड मेटल्स है, नेचुरल। ठीक है, इसी तरह आपके नॉन मैनमेड यानी नॉन नेचुरल मेटल्स भी हैं। उनमें क्या आपके पास प्लास्टिक है, फैब्रिक है, ग्लास है, पेपर है, और ये सारी चीजें। इसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनसे चीजें बनती है, फॉर एग्जांपल जो रोटी है वो किससे बनेगी? फ्लावर से, राइट? शुगर है, राइस है, कॉफी है, ये सब क्या चीजें? कि सब भी मटेरियल नाउन से, क्योंकि इनसे कोई चीज बनती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? No, actually, you said non nouns. They are nouns, but they are non-natural. No. I'm saying that we have got material nouns is one of the category or kind of the noun, which is basically the material used to make something else. For example, but it can be man-made or it can be natural.
For example, water. Water is God gifted blessing Natural. for us, right? It's a natural material. We can't make water. We can make the water in the laboratory, but not the way it is already existed on the earth, right? Similarly, when we Yes. got sand, we have got iron, gold, coal, all these, you see, element metals, they all are natural metals. लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि इंसानों ने खुद कोशिश करके बनाए, जैसे शीशा हो गया, कागज हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये इंसान ने क्या किया, कपड़ा खुद बनाया इंसान ने, प्लास्टिक खुद इजाद किया है, तो ये क्या है, मैन मेड है, ठीक है। आप इनको मैन मेड और दूसरे वालों को गॉड मेड, या फिर उनको नेचुरल और इनको नॉन नेचुरल, दोनों कह सकते हो। इज इट क्लियर? यस। ओके ओके, ठीक है। हमारा तो ये बेसिकली हमारा आज का कॉन्सेप्ट था अबाउट व्हाट, अबाउट लाइक जो हमारा ग्रामर पार्ट था, कि मैंने आपको पास ऑफ स्पीच में नाउन की थोड़ी सी नो हाउ दी है, लेकिन अभी भी इसमें एक कॉन्सेप्ट बाकी है। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि हम अपने शेल्फ को कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से, लिहाजा नाउन की एक और क्लासिफिकेशन और काइंड है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज है, एंड दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट? ये आपने शायद सुनी हो। या काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो काउंटेबल नाउन्स में कोई एग्जांपल्स दे मुझे। काउंटेबल नाउन को हम कैसे जज करते हैं? हम जैसे कोई भी चीज जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। वो क्या है? काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, और वो चीज जो कि जिसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, देखिए काउंटेबल नाउन को जानने के लिए ना आप जो सवाल करते हैं ना, वो कहते हैं हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द बस, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द शेल्फ, ठीक है, हाउ मेनी लाइक चेयर्स आर देयर विद द डाइनिंग टेबल। तो ये क्या हाउ मेनी का सेंस देते हैं, जबकि अनकाउंटेबल जो है ना हाउ मच का देते हैं। हाउ मच शुगर इज इन माय कप, हाउ मच वाटर इज इन द ग्लास, ओके, हाउ मच कूल इज द रूम। ये क्या है, मेजर दो फर्क है, एक कहलाती है मिकदार और एक कहलाती है तादाद। तादाद क्या चीज होती है जिसे आप गिन सकते हैं, मिकदार को आप गिन नहीं सकते। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं यार, खाने में नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो यू कांट कैलकुलेट और मेजर दैट थिंग बेसिकली, राइट? यस। ओके, अच्छा, अब एक और चीज मजेदार है और वो क्या है, काउंटलेस। काउंटलेस के बारे में क्या ख्याल है? वो काउंट की कैटेगरी में आएगी या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगी हमारा? अनकाउंटेबल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स डिफरेंट। देखें, काउंटलेस क्या चीज होती है? काउंटलेस ऐसी चीज होती है which can be counted but it is very difficult because of the enormous quantity. For example, stars. स्टार क्या है? स्टार्स आप गिन सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा तादाद में है कि आप उनको गिन नहीं पाएंगे। सिमिलरली आपके सर के बाल आप गिन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं गिन सकते, लेकिन इतने ज्यादा तादाद में है कि आप इनको नहीं गिन सकते। तो बेसिकली काउंटलेस कौन सी चीजें होती हैं? which can be counted but due to their huge number they can't be. समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके यस। ओके, अच्छा चले, अच्छा एक और चीज छोटी सी मैं ऐड करूंगी, वो ये क्या करूंगी कि जो आपका जो जैसे वाटर है ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंटेबल से अनकाउंटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, ठीक है ना? यस। लेकिन इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर देयर ऑन द टेबल, so can you count those? No, we can Drops of count water. it. How many glass of water? नो, ड्रॉप्स नहीं काउंट कर सकती क्या आप? अगर आपके टेबल पे 3 या 4 ड्रॉप पानी के पड़े हुए हैं और मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर देयर ऑन द टेबल, सो कांट यू काउंट देम? Yes, I can count. ओके, I count. तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन हमने उसको कुछ नए वर्ड्स ऐड करके ड्रॉप्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट जो है ना टाइम पे लागू होता है। टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम मिनट, सेकंड्स और आवर्स को काउंट कर सकते हैं। यार 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, यार 10 मिनट हो गए तुमने ज्वाइन ही नहीं किया, यार 5 मिनट हो गए पानी नहीं लेकर आया कोई। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 12 सेकंड, आप सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते हो। अच्छा, टाइम में भी दो कॉन्सेप्ट है हमारा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी का। यार फॉर एग्जाम्पल आई से कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड योर मदर्स हाउस दिस वीक, तो क्या आप मुझे बता सकती है कितनी दफा आप अपनी अम्मी के घर गई हैं इस हफ्ते? Yeah, I can count. यस, तो देखिए टाइम यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है? यहाँ पे टाइम के सेंस में नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी के सेंस में यूज हो रहा है कि आप कितनी दफा कोई काम करती हैं। तो ये वाला टाइम काउंटेबल है, ओके Okay. लेकिन Yes. वो वाला टाइम काउंटेबल नहीं है
कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई डोंट हैव एनी टाइम, तो ये वाला टाइम आप काउंटेबल नहीं कर कैलकुलेट कर सकती, ठीक है जी, इज इट क्लियर? Okay. Yes. अच्छा, इसी तरह करेंसी जो है वो काउंटेबल होती है लेकिन मनी अनकाउंटेबल होता है। करेंसी से मुराद अगर आपका 2 सिक्के और 4 10 के नोट है और 2 5 के नोट है, एक 5,000 का नोट है, और मैं आपसे पूछूं कि हमारा हाउ मच मनी डू यू हैव, ओके, तो आप बोलेंगे और हाउ मेनी नोट्स डू यू हैव, तो आप मुझे आंसर दे सकती हैं। तो रुपीस कैन यानी करेंसी काउंटेबल है लेकिन पैसा मनी काउंटेबल नहीं है। Okay. सेम कॉन्सेप्ट है कि टाइम अनकाउंटेबल है लेकिन सेकंड्स मिनट्स और आवर काउंटेबल है, ठीक है जी। Okay. ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज कि हमारे पास ज्यादातर जो हमारे पास नाउन है वो किस चीज पे एंड करते हैं, इधर दे एंड ऑन लाइक एस SION शन, TION शन, और NESS नेस, और HOOD हुड। ये इन वर्ड्स पे ज्यादातर, नॉट 100%, but most of the nouns that ends on these I must say they are what suffixes, right? Shun and ness or hood, childhood, brotherhood, livelihood, ness, kindness, happiness, sadness, right? Shun, intention, and you see इस टाइप की जितनी भी चीजें ये सब आपकी किस में आएंगी, नाउन में आएंगी। इज इट क्लियर? Okay. Yes. ओके, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द ग्रामर पार्ट टुडे। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है अबाउट नाउन एंड टाइप, ठीक है जी। आई हैवंट गॉन इन ग्रेट डिटेल, बट इफ यू वांट टू गो इन द डिटेल आई विल प्लान द नेक्स्ट लेक्चर अकॉर्डिंगली, otherwise I will jump to pronoun, verb and adjectives. You just let me know after the class what's your plan, okay हमारा? Yes, sir. Okay. ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास अब, अच्छा कल हमने सिनोनियम्स कितने किए थे हमारा? कल हमने इडियम्स किए थे ना, ब्रेक द आइस और वो सब, Phrases, yes. कितने किए थे हमने? 3 phrases. I think 2 to 3 3. Break the ice. Under 5 the water. 5 किए थे आई थिंक, 5। Oh, I told you na that there was network अच्छा, problem. ओके, डू यू वांट मी टू रिपीट इट फ्रॉम द स्टार्ट? Yes. ओके But ओके, I also जी I बोलिए। want the screen share screen shot, no? Okay, okay, fine. I'll share it. No worries, right? Okay. Okay. So I'm like I'll go a bit fast for the starting ones as we've already done it. So I won't be taking longer time because I have a lot of things to teach you. So okay. So it's like that. Okay. The first one on our screen is under the weather. Okay, under the weather. Under the weather means when something is feeling sick or unwell, but it is like not a chronic disease. Chronic का मतलब होता है बहुत जो लंबे अरसे जो चलती है ना डिजीज, बहुत लंबी, जैसे कुछ बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, ठीक है। तो ऐसी बीमारी जो हल्के फुल्का आपको नजला जुकाम या किसी चीज की वजह से हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडर द वेदर। फॉर एग्जाम्पल, शी मिस्ड दिस वर्क बिकॉज शी वॉज अंडर द वेदर एंड नीडेड टू रेस्ट, यानी उसने काम क्या किया, मिस कर दिया, क्यों? क्योंकि वो क्या थी, थोड़ा सा मौसमी असरात जिसे आप कह सकते हैं, अंडर द वेदर, ठीक है। ये उस सेंस में यूज हो सकता है, अंडर द वेदर, ठीक है जी। हम कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस करते हैं, इससे आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इडियम है ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इसका मतलब है कि आप अच्छा फील नहीं करें, गुड हेल्थ में नहीं है। आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे सो आई एम स्टेइंग एट होम, आई एम नॉट गोइंग फॉर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप Yes. इसको इस तरह, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द फ्लू हैज बीन गोइंग अराउंड एंड आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी आजकल जो फ्लू चल रहा है, कैसे बोलेंगे, द फ्लू हैज बीन गोइंग अराउंड, ठीक है, एंड आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। यू कैन ऑल्सो से you see I have been under the weather for days, I hope I can you see complete my project on time, okay. Okay. Okay, can you will you make a sentence of your like from your side so that I'll know that you are clear with the meaning? Under the weather. Okay, my husband missed his appointment because he feels under the weather. देखो अब, अच्छा, And अब मुझे आप बताइए उर्दू में कि आप क्या बोलना चाह रही थी जुमले में? कि मेरे जो हस्बैंड है वो अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर दिया, मीटिंग मिस कर दी उन्होंने, बिकॉज उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो मौसमी आपने नजला कहा बुखार माय थी। हस्बैंड मिसेस, मिसेस का मतलब है Okay. कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि आप किसी रिपीटेड एक्शन
ऐसा काम जो बार बार होता हो, किसी की आदत, रूटीन, या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना, तो क्या मतलब क्या है, सूरज क्या होता है, मशरिक से इससे निकलता है, मशरिक से। तो ये काम है सूरज का जो वो हर रोज करता है, ठीक है जी। तो हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो हम रिपीटेड एक्शन के लिए यूज करते हैं, और वो हम इस चीज के लिए यूज करते हैं जो एक्शन बार बार हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू द जिम, आई गो टू माई जॉब, आई टीच ऑनलाइन, ये मेरे रूटीन के काम है, ठीक है। तो आप जब ये कहना चाह रही हैं कि मेरे हस्बैंड ने ऑफिस मिस कर दिया, तो आपको पास्ट में जाना चाहिए था, यू वर सपोज टू मिस। से माई हस्बैंड मिस्ड। ओके। ओके, अब नाउ प्लीज रिफ्रेम द सेंटेंस अगेन विद द करेक्ट टेंस प्लीज अमारा। My husband missed his meeting because he feels under the weather. फिर वही, He फिर felt ही, under the weather. बिकॉज ही वॉज फीलिंग अंडर द वेदर, He was feeling under the weather. Okay. ठीक है। यानी कि वो वॉज, आप जब पहला टेंस, देखिए आप उर्दू में भी तो नोट करें ना, जब आप पास्ट टेंस में बात करती हैं तो बाकी जुमला भी आप पास्ट टेंस में ही बोलती हैं। मैं सुबह देर से Okay. उठी, फिर मैंने देर से नाश्ता किया। अब ऐसे तो नहीं बोलती ना कि मैं सुबह देर से उठी, फिर मैं देर से नाश्ता करती हूँ। नो, यू नेवर से दैट, ओके। तो जब आप Okay. पहले Okay. टेंस को लेंगे तो इसको भी करेक्ट करेंगे, ठीक है जी, ओके। नाउ द नेक्स्ट इडियम व्हिच इज विद अस इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी को तोड़ना, बट हर दफा ये खामोशी इस सेंस में नहीं होती कि कोई नहीं बोल रहा। बाज औकात जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो उनसे बात स्टार्ट करना एक चैलेंज होता है फॉर सम पीपल हु आर वेरी इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब वो लोग होते हैं जो कि लोगों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है। ये दो तीन तरह के वर्ड्स हैं, ये भी मैं आपको साथ में बताती चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्ड लाइक, एक वर्ड हमारे पास है इंट्रोवर्ट। क्या वर्ड है हमारे पास? हाँ एक, Introvert. हाँ इंट्रोवर्ट, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके इट्स लाइक, ओके, अब नजर आ रहा है? Yes. ओके, इंट्रोवर्ट है, और Introvert. एक है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और एक है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है जी। अच्छा, ये सारे जो है ना, ये जब हम किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना हमारा, तब हम यूज करते हैं वर्ड्स Yes. को। इंट्रोवर्ट का मतलब ऐसा आदमी होता है जिसे लोगों से मिलने का बिल्कुल शौक नहीं होता, जिसे लोगों से Reserved. हाँ, रिजर्व, वेरी Reserved गुड, वेरी वेरी गुड वर्ड, रिजर्व, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? They are free to talk. हाँ, ऐसे लोगों को हम कहते हैं सोशल बटरफ्लाई। क्या कहते हैं? Social सोशल, butterfly. Okay. जिन लोगों को बहुत ज्यादा लोगों में मिलने मिलाने का शौक होता है ना, सोशल बटरफ्लाई कहा जाता है उनको, ठीक है, ओके। ओके, अच्छा, तो और एक टर्म हमारे पास होती है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है भाई? एम्बीवर्ट का ऐसा मतलब बंदा, चलो ओके, बताइए, आप बताइए। Ambivert. I think they have both the qualities. वेरी गुड, वेरी गुड, इज समथिंग लाइक इन द मिडिल, जो कि जिसे कह सकते हैं आपके बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, मिलते भी हैं लोगों से Okay. और वो भी होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट के लिए बेसिकली आप वर्ड यूज कर सकती है जैसे शाय, रिजर्व, क्वाइट, और प्राइवेट, सॉलिटरी, डिमोर, इस टाइप के वर्ड्स आप, ठीक है। रेटिसेंट भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप यूज करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो क्या है, वो होते हैं क्या, क्या नाम है, इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। आप उनके लिए रिजर्व का वर्ड बहुत Solitary. कॉमन है, रिजर्व्ड आप बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, तो आप बोल सकती है आई लाइक इंट्रोवर्ट पीपल, और आई लाइक पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट, ओके, ठीक है। और यू कैन से आई डोंट लाइक पीपल हु आर ईदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, बट आई लाइक द पीपल हु आर एम्बीवर्ट, जो बैलेंस होते हैं, ठीक है। Okay. Okay. You told one new word. You tell it. Sorry. Solitaire. Solitary, yeah, solitary is also good, but that means somebody who like to live alone, जो तन्हाई पसंद लोग होते हैं ना, सॉलिटरी, उनको हाँ. बेसिकली हम कहते हैं, ओके। दैट्स लाइक दैट्स दिस इज द स्पेलिंग ऑफ दैट, ओके। Solitary. या सॉलिटरी, सॉलिट्यूड कहते हैं Okay. तन्हाई को, ठीक है। सॉलिटरी Okay. ऐसे बंदे को जो कि तन्हाई पसंद हो, और जाहिर सी बात है वो इंट्रोवर्ट होगा, किसी से मिलेगा नहीं तो तन्हाई पसंद होगा ना, और क्राउड में बैठा रहेगा तो फिर तन्हाई पसंद कैसे हो गया, ठीक है नहीं। सो इट्स दैट, ओके। तो ये समझ में आ गया, इज इट क्लियर? ब्रेक द आइस का मैं आपको Yes. बता रही थी। तो जो कुछ लोग होते हैं, आप इसके मीनिंग पे गौर करें, द वर्ड डेफिनेशन इज रिटन इज बेसिकली द मीनिंग टू इनिशिएट
कन्वर्सेशन। आपको एक और नया अच्छा वर्ड मिल रहा है, इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। I'm initiating a new project. I'm initiating a new business. Okay, कुछ भी आप चीज नहीं शुरू कर सकते। I'm trying to initiate a conversation between me and him. Okay, तो I break the ice एक ऐसा idiomatic structure है जो आप यूज करते हैं to make people feel more comfortable with you. For example, आप ऐसी जगह गए जैसे स्कूल की मीटिंग्स होती है बाज़ क्या होता है हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ दफा शुक्र है कि मुसलमान है तो हम अस्सलाम वालेकुम बोल के ब्रेक द आइस कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप Yes. किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ पे सारे लोग आपके अननोन है तो आप जाते ही सलाम तो नहीं करेंगी ना, ठीक है ना। हम मुसलमान तो करते, मैं नॉर्मल लोगों की बात करें तो आप क्या करेंगी, आप किसी बात से या किसी चीज से उस खामोशी को तोड़ेंगे और उसके बाद सामने वाला आपसे आसानी से बात कर पाएगा। ये बेसिकली ब्रेक द आइस नहीं, ये वो है कि पुराने जमाने में जो बर्फ होती थी उसमें क्या करते थे, जहाज फंस जाते थे, पानी के जहाज, बहुत ज्यादा सीवियर बर्फ की वजह से। फिर क्या करते थे, वॉलंटियर लोगों को भेजा जाता था कि आप जाके वहां पे उस आइस को तोड़ें ताकि वो जहाज जो है ना स्मूथली आगे अपने सफर पे बढ़ सके वाइट पे, राइट। तो इससे ये ईडियम निकला है ब्रेक द आइस, क्योंकि जब वो बर्फ तोड़ देते थे तो वो जहाज क्या हो जाता था, रवा आगे बढ़ जाता था। तो सिमिलरली जब आप बातों में एक वो जो खामोशी है उसको जब आप तोड़ते हैं ना, तब आप किसी से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यू गेटिंग? So we can use in the past or present or Yeah, anything. sure. He broke the ice and started weird stories to tell us. Okay. आप इसको कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। शी वॉज ब्रेकिंग द आइस, वो खामोशी तोड़ रही Okay. थी, दैट्स इट। आप सारे टेंसेस में याद रखिए जितने भी इडियम्स हैं, इफ दे आर हैविंग एनी वर्ब इन देम यू कैन यूज देम। फॉर एग्जांपल इससे पहले जो हमने किया था अंडर द वेदर, इसमें कोई वर्ब नहीं है। अंडर क्या है, Okay. आपके पास प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है और वेदर नाउन है, ठीक है। तो इसमें आपके पास, इसलिए आप इसको यूं नहीं कर सकते शी इज अंडरिंग द वेदर, क्योंकि वर्ब नहीं है। जहां जिस इडियम में वर्ब होगा उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे यहाँ पे ब्रेक है, और वो भी जरूरी है कि वो ब्रेक वर्ब के सेंस में हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल Okay. ब्रेक को आप एज अ नाउन भी ले सकते हैं, आई एम हैविंग अ ब्रेक नाउ डेज फ्रॉम माई ऑफिस। ये वाला जो ब्रेक है ना, ये आपका तोड़ने वाला ब्रेक नहीं है, वर्ब नहीं है, नाउन है। इसीलिए मैं आपको पास ऑफ स्पीच पहले करा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाउ टू यूज दीज वर्ड्स। ये हर जगह आपको बॉदर करेगा वरना ये पास ऑफ स्पीच और टेंसेस, ठीक है हमारा। Okay. Okay. ओके ठीक है, ओके So तो ये there this idiom break is a noun. ब्रेक इज द वर्ब, Break is a verb. Okay. शी इज ब्रेकिंग, I is a noun. she broke she broke the ice Okay. and started telling about the meeting to his friend. Okay. 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 Okay, so at the beginning of the meeting Sarah told a funny story to break the ice and help everyone feel more comfortable. Okay. Okay. Okay, now we have got another one which is break a leg. It's a bit difficult to understand but just try to grasp the concept. Break a leg का मतलब होता है to wish someone someone luck. किसी को जब आप वो कहते हैं ना कि भाई कोई काम करने जा रहा है तो आप कहते हैं कि यार ये क्या नाम है, यानी कि तुम अल्लाह करे कामयाब हो जाओ, ये हिम्मत देने के लिए जो हम इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, तो वो उसमें आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ब्रेक द लेग। ठीक है, प्लीज रीड कीजिएगा इसको हमारा। Break a leg to wish someone luck. या Like Sarah, I am so nervous about tonight's show. What if I forget my lines? जी, Okay, Sam, you will do great. Just remember to breathe in and have fun. Break a leg and out there. Break a leg out there. यस। और भी अंग्रेजों में और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो एक दूसरे को लक विश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन से आई एम रूटिंग फॉर यू, I am rooting for you. You are going to crush it. Send you positive vibes. Break the leg. Wishing you all the best. Fingers crossed. ये उनका एक निशान होता है for showing luck. Okay. They can also say like you got this. Blah blah blah. Okay. So there are different ways of wishing someone. So break a leg means ओके अच्छा, ब्रेक अ लेग को आप कोशिश कीजिए कि आप इसको वर्ब की फॉर्म्स में नहीं, लाइक ही वाज ब्रेकिंग अ लेग। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ब्रेक अ लेग को एज अ वो यूज करेंगे ना वर्ब, तो ये सेंस ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है वो टांग तोड़ रहा है। आप इसको एज Yeah. इट इज इस फ्रेज को यूज करेंगी, और किस तरह यूज करेंगी, ही सेड ब्रेक अ लेग। ओके, इस अच्छा ये आपको पता है अमारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, पता है किसे कहते हैं? Muhavre.
नो 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 नो, No, no, वो तो sorry, idioms मुहावरे फ्रेज होते नहीं, हैं, वो हाँ. तो वो तो ये वो होते हैं आपकी इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, मुहावरे तो. Yes. फ्रेज होते हैं ठीक है. बेसिकली, एक होता है आपके पास लफ्ज, फॉर एग्जाम्पल लेग एक लफ्ज है, ब्रेक एक लफ्ज है, ठीक है. और ये जो है ना फ्रेज है, मतलब 2 से 3 4 5 वर्ड्स का मजमुआ. जब हम 2 4 वर्ड्स को एक साथ बोलते हैं ना, तो वो फ्रेज बन जाता है फिर, वो फिर अच्छा, वर्ड नहीं रहता ना. एक चीज होती है सेंटेंस. सेंटेंस की तो कुछ शराइत है ना कि वो उसका कंप्लीट मतलब होना चाहिए. और इसी तरह आपके पास एक लफ्ज है, लफ्ज के कोई मायने होने चाहिए. ये लफ्ज और जुमले के बीच की चीज है फ्रेज, यानी ये जुमले का एक हिस्सा है जो कि एक साथ बोला जाता है. ठीक है, अच्छा. इट्स लाइक दिस. ओके. जी. ओके. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पुल समवंस लेग. पुल समवंस लेग का मतलब है किसी की टांग खींचना. लेकिन यहाँ पे जो ये इसका सेंस जो है ना, ये 2 सेंस में यूज होता है. एक नेगेटिव के उसमें भी यूज हो सकता है, बट यहाँ जो हम सेंस पढ़ रहे हैं ना, वो है मजाक वाला. एक हम खिंचाई नहीं करते मजाक में किसी की, मजाक मजाक में ओके. किसी को, हाँ, ये वो वाला पुलिंग माई लेग है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हेन सारा टोल्ड मी शी हैड वोन द लॉटरी, यानी जब सारा ने मुझे बताया कि उसने लॉटरी जीत ली है, आई थॉट शी वाज पुलिंग माई लेग. उसने कहा शायद मुझे बेवकूफ बना रही है या मेरा मजाक उड़ा रही है, बट देन शी शोड मी द टिकट. तो फिर मैं समझ गया कि मेरा मेरे शी इज नॉट पुलिंग माई लेग. ठीक है. पुल ओके. समवंस लेग मतलब टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक ऑन समवन. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मैंने ये चीज जो है खरीद ली है, ठीक है, तो आपके हस्बैंड आपको कह सकते हैं कि हैव यू एक्चुअली बॉट दैट थिंग, और यू आर जस्ट पुलिंग माई लेग. यानी कि तुम वाकई खरीद के लिए आई हो वो 6,000 रुपए का सूट, या फिर तुम सिर्फ मेरी टांग खींच रही हो. ओके. सो ये इस सेंस में यूज होता है. सूट का नाम सुन के तो हमारा को खुशी हो गई. ओके. ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग. मैंने द बॉल इज इन योर कोर्ट. द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब ये होता है कि अब आपकी बारी है कोई भी डिसीजन लेने की. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप किसी शॉप पे गई, ठीक है ना, आपने कोई चीज खरीदी, कोई ज्वेलरी सेट बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई लैंप खरीदना था आपको. लैंप वाले ने कहा भाई ये लैंप 5,000 रुपए का है, ठीक है ना. आपने उस शॉपकीपर से बार्गेन किया काफी देर, और आपने आखिर में निकलते हुए कहा भाई मैं तो 3,000 रुपए दूंगी. द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ. इसका मतलब है मैंने 3,000 डिसाइड कर लिए. अब आप फैसला कर लें कि 3,000 में देना है या नहीं. अब आपकी बारी है. समझ गई क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ओके. तो यहाँ पे लिखे इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वंस आई गो थ्रू इट आई विल लेट यू नो माई थॉट्स. ठीक है, सारा कह रही है कि भाई मैं अभी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, और जैसे ही मैं पूरा कर लूंगी तो मैं आपको इसके बारे में आपके ख्यालात पूछूंगी. सैम ने कहा कि शो टेक योर टाइम, अपना वक्त लीजिए, काम को मुकम्मल कीजिए. जस्ट रिमेंबर, जस्ट क्या रिमेंबर, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ. यानी कि तुम्हें डिसीजन लेना है, सारा काम तुम्हें करना है. तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड एज सून एज यू गिव मी द ग्रीन लाइट. ठीक है, ये ग्रीन लाइट खुद भी एक फ्रेज है. जो हम इडियम्स करेंगे कलर्स पे तो उसमें ये आएगा इंशाल्लाह ताला. ग्रीन लाइट का मतलब होता है किसी के साथ हामी भरना. आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी है हमारा, Yes. उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं? वी हैव गॉट रेड एंड And green. Green. एंड येलो. येलो ऑरेंज टाइप का भी एक बीच में कलर होता है. ठीक है, रेड का मतलब क्या होता है? Stop the car. ओके. ओके, और येलो और ऑरेंज का मतलब क्या होता है? गेट रेडी. और ग्रीन का मतलब है गो. ठीक है. तो Oh. ग्रीन लाइट का मतलब ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी को हाँ भरना, अप्रूव करना किसी चीज को. ग्रीन सिग्नल. यू सी माय हस्बैंड हैज गिवन मी अ ग्रीन सिग्नल टू गो टू जे डॉट. उन्होंने यानी कि हामी भर लिए के जाओ शॉपिंग करो. ओके. Okay. 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 So these are the 5 idioms. I'm not taking more because I have to just go for the synonyms also, right? And that will also take too long, right? We are a bit late for the class today, but I'll try my best. Okay. Do you want me to repeat the last lecture, which we done? You Yes. see, we did the synonyms for happy in that. Yes, Amara. Yes. Yes. Okay. I can repeat. Okay. I want to repeat actually. Okay. Okay. Sure. 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 That's on your will. If you're comfortable with the repetition, I'm okay. Okay, now synonyms for happy with meanings and suggestion. Synonyms are basically the words which we can use in place of that word, giving the same sense and meaning and intensity, right? हम हमेशा क्या, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछा आप कैसी हैं, लाइफ कैसे चल रही है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. अभी बार बार हैप्पी बोल बोल के ना
बोरिंग बोरिंग स्टाइल है। हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत सारे आसान और अच्छे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ड्स हमारी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है सिनोनिम्स वाला, ये हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला डेली इसको करें। और आप आई कैन इंशाल्लाह ताला, लाइक आई बिलीव इन अल्लाह, कि 1 महीने बाद आप अपने अंदर वोकैबुलरी में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज महसूस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा हाँ इंशाल्लाह। बेसिकली हमारा होता क्या है, देखिए जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो इन उर्दू वी हैव अ लॉट ऑफ यू सी, क्या कहना चाहिए, जखीरा है हमारे पास अल्फाज का उर्दू में, बट नॉट इन इंग्लिश। हमारे पास खुशी के लिए एक ही बचा कुचा लफ्ज है, हैप्पी और ग्लैड, बस। इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, ये बहुत हो गया, तो चेयरफुल बोल दिया, ये डिलाइटेड बोल दिया, इससे आगे। लेकिन बहुत, जब आपके पास बहुत ज्यादा वर्ड्स होंगे एक ही लफ्ज के लिए, तो आपकी फ्लुएंसी तेज होगी, क्योंकि आपको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बकेट में सिर्फ जो है ना, वो क्या नाम है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उससे आसानी से चीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में। एक पॉन्ड की मिसाल ले ली, उसमें बहुत सारी फिशेस हैं, तो आप आसानी से फिश पकड़ लेंगे। लेकिन अगर एक बहुत बड़े पॉन्ड में मैं सिर्फ 8-10 मछलियां छोड़ दूं, तो आपको पकड़ती रहेंगी फिर पूरे दिन। ठीक है ना, यही सेम केस वोकैबुलरी का है। अगर आपके पास बहुत सारी वोकैबुलरी होगी एक ही वर्ड के लिए, तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। okay, so the first which we have is joyful, filled with joy, खुशी से भरपूर होना। the joyful bride, ब्राइड का मतलब दुल्हन। ठीक है, बीम, बीम का मतलब होता है, बीम बेसिकली कहते हैं शुआ के निकलने को ना, बीम, बीम ऑफ लाइट पढ़ा होगा आपने। तो बीम का मतलब होता है किसी चीज से रोशनी निकलना। तो द जॉयफुल यानी जो खुश दुल्हन थी, बीम विद हैप्पीनेस ऑन हर वेडिंग डे, वो अपनी शादी वाले दिन कैसे यानी खुशी से वो चमक रही थी, वो उससे शुआ निकल रही थी खुशी से। ठीक है, देन वी हैव गॉट जुबिलेंट, फिल्ड विद ट्रायम्फ एंड जॉय, फतह का जो इसमें से विक्ट्री का जो सेंस आता है। द जुबिलेंट टीम सेलिब्रेटेड दियर चैंपियनशिप विन विद द परेड। उन्होंने क्या किया, परेड समझती है ना, मार्चिंग फास्ट विद द सेम रिदम एंड ऑल इन अ ग्रुप इज बेसिकली कॉल्ड परेड। तो जुबिलेंट टीम का मतलब जो खुश टीम थी। याद रखिए ये सारे वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव्स है। ठीक है, और इनको हम नाउन के साथ यूज करते हैं। एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो आप एडजेक्टिव के आप बाद या उसके इर्द गिर्द नाउन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टीम क्या है, अभी हमने पढ़ा है टीम कौन सा टाइप ऑफ नाउन है हमारा। टीम, जी, अभी हमने 5 टाइप्स। कलेक्टिव, वेरी गुड, कलेक्टिव नाउन। एब्सोल्युटली गुड। समझ में आया आपको किस तरह ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमने देखिए, इसको हमने एज अ सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। द जुबिलेंट टीम, जुबिलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, टीम के बारे में बता रहे हैं कि टीम कैसी है, खुश है। सेलिब्रेटेड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है पास्ट। डियर चैंपियनशिप विन विद द परेड, राइट। जो 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 खुश टीम थी उसने अपनी चैंपियनशिप किस तरह सेलिब्रेट की, अपनी विनिंग को, एक परेड के जरिए। इलेटेड, इलेटेड, इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइट होना। शी वॉज इलेटेड व्हेन शी गॉट एक्सेप्टेड इनटू हर ड्रीम कॉलेज, वो क्या हुई, बहुत ही ज्यादा खुशी। अच्छा देखिए, एडजेक्टिव्स को यूज करने के 2 बेसिक तरीके हैं। एक ये है कि एडजेक्टिव को पहले लिखिए और उसके फौरन बाद आप क्या ले आइए, नाउन ले आइए। ठीक है, और एक तरीका ये है कि आप प्रोनाउन यूज करें और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा के एडजेक्टिव को, जैसे हमने यहाँ किया, शी वॉज इलेटेड। ओके, ओके। शी वॉज इलेटेड व्हेन शी गॉट एक्सेप्टेड इन हर ड्रीम कॉलेज, जब उसको अपने ख्वाबों के पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। ठीक है, देन वी हैव गॉट, यस, देन वी हैव गॉट यूफोरिक, यूफोरिक। याद रखिए यू जो है ना, ई साइलेंट और यू, ये एक ऐसा वो है, प्रीफिक्स है। ठीक है, एक ऐसा रूट वर्ड है जो कि हमेशा अच्छे के साथ लगता है। यूथोपिया के बारे में आपने सुना होगा, अ प्लेस वेयर एवरीबॉडी इज हैप्पी। ओके, यूफोनी के बारे में सुना होगा, अच्छी आवाज में गाना। यू का मतलब ये होता है गुड, अच्छा। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव रूट है। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब मैं आपको रूट वर्ड्स कराऊंगी, वो थोड़े से एडवांस लेवल में होते हैं, तो उसमें फिर आप ये पढ़ेंगे ये चीजें। ठीक है, तो इंटेंसली हैप्पी एंड एक्साइटेड, द यूफोरिक क्राउड इरप्टेड। इरप्ट मतलब एक वर्ब है जिसका मतलब है फट पड़ना। ये खास तौर पे हम किस चीज के साथ यूज करते हैं ये वर्ब, ये हम यूज करते हैं बैल्कोनों के साथ। बैल्कोना समझते हैं, आते आशीष फिशा पहाड़ जो होते हैं, जी। जी, तो उनके लिए हम ये इरप्ट, किसी चीज का बहुत प्रेशर से फटने को इरप्ट कहते हैं। ठीक है, द यूफोरिक क्राउड, जो बहुत ज्यादा खुश हुजूम था, इरप्टेड इन चीयर्स, खुशी से क्या हुआ, फट पड़ा, व्हेन द कॉन्सर्ट स्टार्टेड, जैसे कॉन्सर्ट शुरू हुआ। ठीक है, ओके। ओके, देन वी हैव गॉट डिलाइटेड, ये तो बहुत इजी है।
pleased and charmed. The delighted child giggled with glee at the surprise party. Giggled का मतलब होता है जो बच्चे नहीं, छोटे बच्चे और लड़कियां जो होती हैं ये 15-16 साल की ही जो करती रहती हैं, तो that's called giggling. Yes, with glee. Glee का मतलब ये होता है खुशी. Glad, glee, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है खुशी के लिए, glee. ठीक है, तो एट द सरप्राइज पार्टी, तो जो छोटा सा बच्चा था वो क्या कर रहा था, वो बहुत ही खुश हो रहा था, हंस रहा था, किस तरह, सरप्राइज पार्टी पे. चेयरफुल, ब्राइट एंड प्लेजेंट. द चेयरफुल सनशाइन फिल्ड रूम विद वर्थ एंड लाइट. मेरा जो सूरज की जो खुश रोशनी थी, सूरज की रोशनी क्या पैगाम लाती है आपकी जिंदगी में, खुशी का. ठीक है, तो द चेयरफुल सनशाइन, सन इस सूरज, सनशाइन का मतलब सूरज की रोशनी या धूप, धूप के सेंस में भी सनशाइन को लेते हैं. ठीक है, फिल द रूम विद वार्म, यानी वार्म मतलब हल्की हल्की गर्मी, जब सूरज की रोशनी आती है तो हल्की सी तपिश आती है, एंड लाइट रोशनी आती है. ठीक है, देन वी हैव गॉट मैरी, इट्स नॉट MARRY, रिमेंबर इट इज MERRY. ठीक है, लाइट हार्टेड एंड प्लेफुल. My merry friends laughed and joked at the holiday party. हॉलीडे पार्टी में मेरे जो खुश दोस्त थे वो बहुत ज्यादा हंसे और एक दूसरे से उन्होंने बहुत ज्यादा मजाक किया. ठीक है, ये सारे टेंस आप गौर कर रही हैं, हमारा आई एम यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, फिर हमारे पास है रेडियंट, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, रेडियंट का मतलब रेडिएशन से ये लफ्ज निकला है, रेडिएशन मतलब शुआएं. ठीक है, ग्लोइंग विद हैप्पीनेस, सिमिलर टू, अभी जो हमने इससे पहले जो बीम का वर्ड पढ़ा था वो भी सिमिलर सेंस में यूज होता है. ठीक है, द रेडियंट ब्राइट ग्लोड, ग्लोड में हम कहते हैं ना हमारे, हम स्किन केयर करवाने जा रहे हैं, हमारी स्किन में ग्लो आ जाए. ठीक है, ये वो अलग ग्लो है. द रेडियंट ब्राइट ग्लोड विद हैप्पीनेस ऑन हर वेडिंग डे. दुल्हन का चेहरा कैसे चमक रहा था, खुशी से. ठीक है, थ्रिल्ड, थ्रिल्ड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, प्लेजेंट. ज्यादातर हम ये किस चीज के लिए यूज करते हैं, वी आर सो थ्रिल्ड अबाउट द मूवीज. ठीक है, द थ्रिल्ड फैन स्क्रीम, 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 क्रीम के आगे एस लगा दें, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना. ठीक है, और ये ईडीज की सेकंड फॉर्म है. द थ्रिल्ड फैन स्क्रीम्ड विद एक्साइटमेंट एट द रॉक कॉन्सर्ट. ठीक है, रॉक स्टार के जो कॉन्सर्ट्स हैं वहां पे वो क्या हुआ था, जो उनका एक फैन था जो बहुत ही ज्यादा खुश था, वो क्या हुआ, चीख रहा था एक्साइटमेंट के साथ. यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव एस्थेटिक. एस्थेटिक, ओवरवेल्म्ड विद हैप्पीनेस, जिससे खुशी संभाली ना जा रही हो. ठीक है, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कोई चीज आपसे संभाले नहीं जा रही है, आप उसको प्रॉपर्ली वो कैरी नहीं कर पा रहे. ठीक है, द एस्थेटिक विनर जंप फॉर जॉय व्हेन शी वॉन द लॉटरी. एस्थेटिक विनर यानी जो खुश, जो विनर था उसने क्या किया, वो खुशी से उछल पड़ा जब उछल पड़ी जब उसने लॉटरी जीती. ओके जी हमारा. सो अब मुझे ये बताइए हमारे इसमें से कितने सेंटेंसेस आपको ऑलरेडी वर्ड्स आते थे. स्क्रीम, आई नो. एक से मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करती हूँ, एक सेकेंड है, 2 में ले आते हैं जी. अच्छा मुझे बताइए, जॉयफुल आता था, या जॉयफुल. और जुबिलेंट, नो. ओके, इसको हम रेड कर देते ताकि हमें परसेंटेज पता चल सके. ठीक है, इलेटेड, नो. ओके, देन वी गुड यूफोरिक, यूफोरिक भी नहीं होगा क्योंकि बहुत कम यूज होता है. ओके, देन डिलाइटेड आता होगा, चेयरफुल आता होगा, मैरी आता होगा, रेडियंट, ब्राइट एंड प्लेजेंट, आई नो. रेडियंट नो, थ्रिल्ड, स्टैटिक नो. ठीक है, थ्रिल्ड नो एंड स्टैटिक नो. ओके, एंड स्टैटिक. ओके, सो अगर हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इसमें से 40% आपको आता था और 60% नहीं आता. ठीक है, अब आपको एक चीज ये प्रैक्टिस करनी है, 2 चीजें मैं आपको बता रही हूँ. एक तो आपने ये करना है कि आपने इन वर्ड्स के सेंटेंसेस घर में ट्राई करने हैं खुद से. ठीक है, और दूसरा ये कि एक ही जुमले में एक से ज्यादा वर्ड को यूज करने की प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे टीम लिखा है ना, तो आप कह सकती हैं द जुबिलेंट एंड इलेटेड टीम सेलिब्रेटेड देयर चैंपियनशिप. ठीक है, Amar, are you getting what I'm saying? Okay, in one synonyms we use two. In one sentence we use 2 synonyms. Or even you can use 3. That's the best balance. ये होता है कि आप किसी चीज के emphasize करने के लिए दो दफा, फिर end का word use करके तीसरी दफा. For example, you can say the bride was radiant, thrilled and ecstatic on the wedding day. Okay? जब हम किसी जुमले पे एम्फसाइज कर, फॉर एग्जांपल आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि हाउ यू आर फीलिंग टुडे, तो आप ये कह सकती है आई एम फीलिंग जुबिलेंट, इलेटेड एंड यूफोरिक अबाउट द इंटरव्यू. आई वाज वेरी ओवर एक्साइटेड. ओके, Okay, we can use it
by one, मतलब like लाइन से एक साथ तीन नो नो यूज कर नो नो सकती नो हूँ? नो नीड, आप उसको आगे पीछे कर सकती हैं, देयर इज नो वरी इन दैट, आप इसको आगे पीछे कर सकती हैं, ठीक है। Okay. अच्छा, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, और ये मैंने रेड जो है ये इसके साथ भेजूंगी, ताकि आपको पता चले किन पे आपको ज्यादा एम्फोसाइज करना है, ठीक है हमारा। Okay. अच्छा, और दूसरा मुझे बताइए कि आपको इडियम्स के भी भेजने हैं, वो जो 5 इडियम्स हमने किए हैं। Yes. ओके, Idioms and nouns. ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ सो दोनों मैं आपको भेज देती हूँ, तो यू जस्ट प्रैक्टिस। अच्छा, अब मुझे आप बताइए क्या, हाउ हाउ डू यू फील अबाउट द क्लास, क्या चीज क्लास में और अगर आप चाहती हैं कि ऐड होना चाहिए, तो यू कैन जस्ट टेल मी, मैं उसी हिसाब से फिर आपको लेक्चर डिजाइन कर लूंगी। बिकॉज 101 में हमारे पास ये लिबर्टी होती है कि हम स्टूडेंट सेंटर्ड लेक्चर्स बनाते हैं बेसिकली। आपको जिस चीज को पढ़ने की जरूरत है हम आपको वही पढ़ाएंगे, ओके। My actually my major focus is IELTS based now. So I want to you give me some topic and I'm written I am writing on it. So नो नो, you देखिए check ये and हमारा 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 लिसन बेटा, आप एक चीज को समझिए कि सबसे पहले आपको ग्रामर के मैं कुछ रूल्स बताऊंगी, तो उसको फॉलो करते हुए आप लिखेंगी ना, okay. ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, मुझे पता है कि ये बहुत बोरिंग लगेगा आपको, एक हफ्ता 10, ये जो स्टार्टिंग 8-10 क्लासें ने आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगे, लेकिन उसके बाद आप एक ड्रास्टिक चेंज यूज करेंगे। जब मैं आपको एक हफ्ते बाद जब आपकी मिस्टेक समझाऊंगी ना, तो आपको हकीकत में अपनी मिस्टेक समझ में आना शुरू होगी कि ओके मैं ये ब्लंडर कर रही हूँ, ठीक है। Okay. तो थोड़ा सा पेशेंस का काम है। देखिए, आप माशाल्लाह से एक लैंग्वेज, अच्छा चलिए ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई और जबान सीखने को बोलूं, तो आप कम से कम कितना टाइम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ पश्तो सीख लें, आप कितना टाइम मुझसे मांगेंगे हमारा। Yeah, it takes time. Maybe it's 1 year. चले ठीक है ना, तो कम से कम आप इंग्लिश को पहले से जानती है, तो हाफ हाफ टाइम तो दें। Okay. Okay. चले हाफ नहीं तो क्वार्टर, 3 महीने तो एटलीस्ट आपको लगने चाहिए, तब जाके आप इस काबिल होंगी कि आप वाकई ही किसी भी नेटिव से ओपनली बात कर सकेंगे, ठीक है। Okay. चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक हमारा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल इसी वक्त में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, ओके। कोई बात हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो एनी टाइम, आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह, ओके हमारा। Okay. चलो Okay. सी यू, ओके, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज।